Hello students and welcome to today's biology class. In the previous class we had already discussed about genetics. We have seen two chapters of genetic, that is the principles of inheritance and variation, and chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. Now we'll directly move on to chapter number 11, that is biotechnology principles and process. I'm skipping to this chapter directly because these two chapters are related. Okay, so whatever you have studied in chapter number 5 and chapter number 6, you'll find that these two topics will be very much essential to understand biotechnology, its principle, its process, and the mechanisms. So that is the reason we are coming to biotech directly. Then we will move on to the rest of the chapters for your class 12 course syllabus for this academic session. Okay, so chapter number 11, biotechnology, principle and process. So students, let's begin. So first we'll introduce biotechnology, what actually biotechnology means, and how it is useful, what are its implications and all. We'll study that. So what do you understand by biotechnology? The term biotechnology deals with techniques of using living organisms for enzymes from organisms to produce products for the well-being of mankind. तो देखो, इसको बहुत सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये उसका डेफिनेशन है. इट सिंपली मीन्स, देखो ये दो वर्ड से बना है बायोटेक्नोलॉजी. बायो मीन्स लाइफ और लिविंग. Technology, as you know, this is involvement of different equipments to carry out certain processes or to form certain products. तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग ये है, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉयट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड. तो हम अपने बेटरमेंट के लिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी तरह से एक्सप्लॉयट करते हैं बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. Now, the term biotechnology was given by Carl Erke in the year 1919. Now, he is also known as the father of biotechnology. ठीक है students, इसको आप चाहो तो mention कर दो. He is called as father of biotechnology. Carl Erke, he introduced this term, he explained what biotechnology is, and in fact, he had put forward certain basic principles of biotechnology through his work. So that is the reason we consider Carl Erke as the father of biotechnology. According to the European Federation of Biotechnology, that is EFB, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने इसको डिफाइन किया है. उन्होंने एक अपना डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, which states that biotechnology is the integration of natural sciences. It is the integration of natural sciences, organisms, cells, part of their and molecular analogies for products and services. तो जब ये सब चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, सेल को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर यूज कर रहे हैं टू मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर मैनकाइंड और टू गेट सर्टेन सर्विसेज फॉर मैनकाइंड, दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. और ये डेफिनेशन किसने दिया है? दिस इज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB. ठीक है. Now this is how it is. Different kinds of procedures are there, different principles are there. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट्स को हम लोग मॉडिफाई करते हैं बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और वी एक्सट्रैक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो विल गेट इनटू डिटेल्स, विल अंडरस्टैंड हाउ द implications are and where you can apply biotechnology, how it is useful to human beings. Now there are certain principles of biotechnology. Okay, there are two core techniques that has developed modern biotechnology. आज का जो बायोटेक्नोलॉजी का आप लोग एस्पेक्ट देख रहे हो, आज का जो उसका वेल डिफाइंड एक रिसर्च ओरिएंटेड जो बेस है, वो दो टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. इट इज डिपेंडेंट ऑन टू कोर टेक्निक्स. ओके, व्हाट आर दोस टू टेक्निक्स? The first one is genetic engineering. Now here the word genetic engineering, दो words बना है, आप इसको डेसिफर करोगे, बहुत सिंपल है. जेनेटिक रिलेट्स टू जीन, द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. इंजीनियरिंग, टू क्रिएट समथिंग, टू मेक समथिंग. ठीक है. तो इंजीनियरिंग मतलब बाय मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स, डिफरेंट टूल्स यूज करके हम अगर कुछ क्रिएट करते हैं, हम अगर कुछ बनाते हैं, तो उसको इंजीनियरिंग बोला जाता है. तो यहाँ पे किस चीज का इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग? जीन्स का. वी कैन मैनिपुलेट जीन्स, वी कैन डिलीट जीन्स, वी कैन ऐड जीन्स, वी कैन मॉडिफाई जीन्स. तो जीन्स को लेके हम बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं. That is called as genetic engineering. It is a modification of chemical nature of DNA and RNA, the genetic material,
and their introduction into another host organism to alter phenotypic character. ठीक है, तो किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज करने के लिए अगर कोई फॉरेन डीएनए या आरएनए हम लोग इंसर्ट करते हैं इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म, देन दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम चाहें तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन ला सकते हैं और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डाल सकते हैं टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, तो विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी के लिए सिर्फ आप डेफिनेशन समझ लो। This is how it is. You can cut genes, you can add genes, you can manipulate genes, you can modify genes, you can carry out many things on the genes. We can engineer them to be very simple. ठीक है, एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। ना ये स्टेरिलाइजेशन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्टेरिलाइजेशन मेथड्स नहीं आए थे हम कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं कर पाते थे। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आप एक ब्रेड बाहर रख देते हैं तो उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। इज इट लाइक कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फंगस ग्रो करता है उसमें? इट इज नॉट ट्रू। अलग अलग फंगस ग्रो कर सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो आप जब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं था कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम लोग करें विदाउट कंटामिनेशन। बट स्टेरिलाइजेशन मेथड्स गिव्स अस दैट स्पेसिफिक पावर टू कल्चर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन। हम लोग उसको बोल सकते हैं कि स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और एक प्योर कल्चर हम लोग बना सकते हैं। It is to maintain the growth and manipulation of only the desired microbes or cells in large quantities for manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. तो जब हम कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग उसका कल्चर करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आइसोलेट कर सकते हैं। अगर उसमें कंटामिनेशन आ गया, उसमें 2-3 अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पाने के लिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड्स यूज करते हैं। नाउ दिस इज हाउ बैक्टीरियल कल्चर्स आर डन ऑन पेट्री प्लेट्स, जहां पे हम कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया अपने हिसाब से इन ए स्टेराइल मीडियम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड सेगमेंट ऑफ आवर चैप्टर। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रोसेसेस में जाएंगे। Now there are different steps in genetic engineering. जब हम लोग genetic engineering कर रहे हैं तो उसके कुछ steps होते हैं। ठीक है, the first step, identify the desired DNA. ना जो DNA आपको किसी ऑर्गेनिज्म में डालना है, उसको एक्सप्रेस करवाना है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा DNA हमें डालना है। लाइक टेक द एग्जांपल, अगर अभी मैं इसके बाद आपको दिखा दूंगा एग्जांपल, पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू इंट्रोड्यूस द DNA इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट DNA। तो हमने पहले डीएनए आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको हमने एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है उसको, सो दैट वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सके। थर्ड वन, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए इन द होस्ट सेल एंड जीन क्लोनिंग। तो जब हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया एक होस्ट सेल में, तो वहां पे वो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, एंड देन इट कैन बी एबल टू ऑल्सो क्लोन इटसेल्फ। वो अपना बहुत सारा कॉपीज भी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉपीज नहीं बनाएगा तो वो आगे प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, हमारा प्रोडक्ट एक ही जनरेशन में रह जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट एंड जीन ट्रांसफर। तो जो जीन हमने क्लोन किया है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो जीन जिस प्रोटीन के लिए कोड करता है या फिर जिस आपका फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए कोड करता है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Okay, we can extract that. Now in 1972, Stanley Cohen and Herbert Boyer constructed the first recombinant DNA by inserting antibiotic resistant gene from Salmonella typhimurium into a plasmid. तो सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग कब हुआ था? इन द ईयर 1972, जब स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कैसे बनाया था? Now the antibiotic resistant gene जो Salmonella typhimurium में है, that's a bacteria, तो उससे उन्होंने वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और उसको उन्होंने एक प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इंसर्ट किया। तो अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके साथ एक फॉरेन जीन भी एडेड है, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, इट वाज डन इन द ईयर 1972 बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। नाउ हाउ इट टेक्स प्लेस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बैक्टीरिया लेंगे, उसका प्लाज्मिड निकालेंगे। सिमिलरली हम कोई ह्यूमन सेल या फिर कोई भी स्पेसिफिक होस्ट सेल लेंगे जहां से अपना डिजायरेबल डीएनए निकालेंगे। हमने देखो पहले स्टेप में ही मेंशन किया कि डिजायरेबल डीएनए हम निकाल रहे हैं। सपोज आप इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहते हो तो हम लोग ह्यूमन से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन पहले निकाल देंगे। उसके बाद उस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को, दिस ब्लू कलर जीन, दैट वी विल इंसर्ट इनटू दिस प्लाज्मिड।
तो बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड आपने निकाला है उसके साथ आप अपना डिजायर्ड डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाओगे। यू विल मेक ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय इंसर्टिंग द डिजायर्ड डीएनए इनटू द प्लाज्मिड। तो अभी देखिए ये जो नया डीएनए बना ये प्लाज्मिड डीएनए ही है, लेकिन उसके साथ हमारा डिजायर्ड डीएनए भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्लाज्मिड डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंसर्ट कर देंगे बैक इनटू द बैक्टीरियम। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोग फिर उसे ट्रांसफर कर देंगे ना। बैक्टीरिया में जाने के बाद अब देखिए ये डिजायर्ड डीएनए बैक्टीरिया में आ गया। जनरली बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जब आपने उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन डाल दिया थ्रू द प्लाज्मिड, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे इन ग्रोथ कल्चर, ग्रोथ मीडियम, जैसे हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा स्टेरिलाइजेशन करके। ठीक है, तो आप इस बैक्टीरिया को ग्रो करोगे तो वो बैक्टीरिया अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्ट क्या है, इंसुलिन, बिकॉज हमने इंसुलिन जीन उसमें डाला है तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा। तो उस इंसुलिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमने लास्ट स्टेप में बताया है प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सो एक्सट्रैक्ट दिस इंसुलिन and it will be used for treatment of diabetes in case of human beings. So this is how genetic engineering is carried out. ठीक है, now how it was created, पहला recombinant DNA कैसे उन्होंने create किया था ना, these are the two persons, Cohen and Boyer. They carried out this experiment. What they did, the gene encoding antibiotic resistant from the native plasmid of Salmonella typhimurium was identified. पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है सेल्मोनेला टाइफीमूरियम में। रिमेंबर प्लाज्मिड्स आर एक्चुअली ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए के बाहर होते हैं, दे आर अपार्ट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए एंड दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट द डिपेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस। तो बिना न्यूक्लियस के भी वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्लाज्मिड। तो उन्होंने उसी प्लाज्मिड से उन्होंने उसको आइसोलेट किया। उसके बाद क्या किया, ये जो डिजायर्ड डीएनए था इट वाज कट एट स्पेसिफिक साइट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो उन्होंने उस डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स में काट दिया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे इन द अपकमिंग टॉपिक्स। तो अभी आप याद रखिए इस चीज को कि डीएनए को काटने के लिए हम कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोला जाता है, और अगर स्पेसिफिक पॉइंट में काटना है तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं। दिस कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस और द स्पेसिफिक सेगमेंट्स। तो उसको स्पेसिफिक पॉइंट में उन्होंने काटा बाय यूज ऑफ दिस एंजाइम। Now the third step was this cut DNA was linked to a plasmid DNA. तो उन्होंने इस कट डीएनए को एक प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर दिया एंड देन ट्रांसफर्ड इट टू द इकोलाई फॉर जीन मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज व्हाट दे डी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने इकोलाई से निकाला, प्लाज्मिड सेपरेट किया, फिर सिंथेटिक डीएनए बनाया, दोनों को ज्वाइन किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट किया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर इकोलाई में डाल दिया हियर। ठीक है, सो दैट इट कैन एक्सप्रेस द स्पेसिफिक डीएनए। यहाँ पे उन्होंने कौन सा डीएनए डाला है, they have put antibiotic resistant gene from Salmonella typhimurium into a plasmid and inserted into a E. coli. उन्होंने लिया Salmonella typhimurium में, लेकिन उस जीन को उन्होंने इंसर्ट किया into E. coli for expression. So students, this is the basics of biotechnology. In the upcoming classes, we'll discuss about their principles and processes. Thank you everyone.